The session is Alam Ye Tamam Khwab. The world is but a dream. This session will talk about music. Delhi is also a great center of music. To discuss the relationship between nature and music, we have an eminent panelist of a classical vocalist and other musicians who are acclaimed critics as well. I'd like to welcome Ms. Manjari Sinha. She's an accomplished classical musician and dance critic, recognized both for her depth and understanding of the Indian classical arts, as well as her effortless command over language. Her articles in English and Hindi on music, Hindustani and Carnatic, dance, art and culture are regularly showcased in a variety of leading journals and periodicals. Welcome, ma'am. Mr. Mukesh Garg is a musicologist and music critic. He was the founder director of Sangeet's Sankalp, an international organization dedicated to lesser known but highly accomplished performers of Indian classical music, having 112 branches in 18 states in India and USA. He is advisor for interdisciplinary research work on aesthetics of literature and music. He is also founder head for the Department of Hindi, Azerbaijan University of Language, Baku, Azerbaijan. Welcome, sir. Ms. Sulochana Brihaspati is one of the top vocalists of the Indian classical music system, Khayal, which blends religious Hindu music, Persian music, and Sufi music. She is an exponent of the Rampur Gharana and has mastered the Gharana's parampara, which begins with the bandish in an ultra-slow tempo and is followed by a poem in a medium tempo and a highly improvised bandish at a fast tempo. Welcome, ma'am. The session will be moderated by Mr. Vikram Lal. Mr. Vikram Lal is an award-winning architect, educator, author, and patron of arts. He has more than 25 years of experience in architectural practices and consultancy, and is a principal architect and partner of Lal and Associates with a master's degree in interdisciplinary design from Cambridge. Vikram has designed several landmark buildings such as Akshardham Temple in Delhi and Buddha Smriti Park in Patna. His deep familiarity with both international and local ideologies has enabled him to creatively bridge the increasing gap between local and global design conditions. He's been feted by the President of India, and his projects have been extensively covered in several national and international journals. Welcome. इसलिए to connect music, दिल्ली, nature, ये आसान काम नहीं है मेरे हिसाब से. इसलिए कि what are the traditions of music in Delhi? पहले तो वो समझना पड़ेगा हम लोग को before I suppose we connect it with nature or anything. दिल्ली की क्या legacy है म्यूजिक में? तो अगर मैं ये कहूँ कि ध्रुपद is not necessarily the most important legacy. It was played in Delhi. यहाँ पे ध्रुपद बजती थी मुगल दरबार में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लेगेसी ख्याल है हमारे हिसाब से, क्योंकि सदारंग यहाँ पे थे और यहाँ पे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ख्याल का. तो कुछ इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं पहले, और फिर ख्याल में नेचर को कैसे डाला गया है ये देख सकते हैं, और उसके बाद आज के दौर में वो जो ट्रेडिशंस दिल्ली की थी उसका क्या हाल है इसके बारे में बात कर सकते हैं. तो ये तो सिर्फ मेरा राय है, बिकॉज आई हैव बीन मेड अ मॉडरेटर, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आप लोग इतने अकम्प्लिश्ड हैं, ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू स्पीक ऑन योर ओन. लेकिन सिंस आई हैव बीन गिवन द टास्क, मे आई स्टार्ट दिस डिस्कशन फर्स्ट विद
मुकेश जी, आप थोड़ा कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? आपके पास में ये है। आप सभी को मेरा प्रणाम। विक्रम जी ने शुरुआत में बस भूमिका बना के सारी आफत मेरे ऊपर डाल दी है। अब दिल्ली से संगीत को जोड़ना कोई आसान काम तो है नहीं। खास तौर से 18वीं सदी से अभी तक लगभग 200 साल संगीत का जिस तरह से विकास हुआ है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ा है, जाहिर है थोड़ा सा मैं आपको 18वीं सदी से पहले के बारे में भी बात करके बताऊं कि उससे पहले ध्रुपद का बोलबाला था और ध्रुपद के बारे में बड़ी अजीब अजीब धारणाएं हैं हमारी। अजीब धारणाएं इसलिए कि ये कहा जाता है कि ध्रुपद वेदों से आया, ध्रुपद गाओ बजाओ तो मोक्ष हो जाता है, नाद ब्रह्म से सीधा लेना देना है, जबकि ऐसा कतई नहीं था। अब जब कोई ध्रुपद के कलाकार या उसके तारीफ करने वाले लोग मौजूद होते हैं तो उनके सामने बोलते ही उनकी भौहें तन जाती हैं। लेकिन जो बात है वो मैं ज़रूर आपके सामने कहूँ, क्योंकि उसका सीधा असर 18वीं सदी के ख्याल पे और उसके बाद पड़ता रहा है। ध्रुपद की शुरुआत 15वीं सदी में मानी गई मान सिंह तोमर से। उन्होंने काफ़ी काम किया उसके लिए। उनके ज़माने में नायक बख्शू थे और बख्शू साहब ने ध्रुपद की हज़ारों बंदिशें बांधी थी। इसका सबूत मिलता है सहस रस में। सहस रस बख्शू के ध्रुपदों का संग्रह है, जो 15वीं सदी में तो नहीं लेकिन शहंशाह जो जिन्होंने ताजमहल बनवाया था उनके ज़माने में संग्रह हुआ था, तो लगभग 200 साल बाद हुआ था। पर उन ध्रुपद की बंदिशों का साहित्य हमारे पास है, संगीत नहीं है। राग नाम पड़ा है, नीचे बंदिश के शब्द हैं। उन बंदिश के शब्दों को अगर आप देखें पूरे सहस रस में, तो जो रस निकल के आता है वो रस हमें लगता है कि शायद भगवान से रिलेटेड है, परब्रह्म से रिलेटेड है। ऐसा बहुत ही कम है। लगभग 65-70% जो साहित्य है उस ध्रुपद का, उसमें जो नायक है वो नायक बहुरमण है, अनेक स्त्रियों के साथ प्रेम करता है। एक पुरुष अनेक स्त्रियां, ये कोई भगवान की बात नहीं हो रही है, ये इसी धरती की बात हो रही है। और ये ध्रुपद के शुरुआती दौर की बंदिशें हैं। इन सब से ये तय होता है कि हम जिस तरह से ध्रुपद के नाम पर आज आतंक फैलाते हैं कि बस गाओ बजाओ तो सीधा मोक्ष, ऐसा कतई नहीं है। जब 18वीं सदी में ख्याल आया तो ख्याल, जैसा कि सुलोचना जी से बातचीत में और भी लोगों से बातचीत में आपने भी कल जिक्र किया था कि ध्रुपद के आधार पर ख्याल की बंदिशें बांधी गई। अब जाहिर है ध्रुपद में जिस तरह का कंटेंट था, भले वो म्यूजिक वाला कंटेंट हो चाहे साहित्य वाला कंटेंट हो, उसका असर ख्याल के ऊपर था।
तो वो कोई भगवान नहीं थे वहाँ पे। उस ख्याल में जो दरबारों में पनपा, ध्रुपद भी तो दरबारों में ही पनपा था। ये दरबारी परंपरा है पूरी की पूरी। जो मंदिरों में गाया जाता था वो कोई ध्रुपद नहीं होता था, वो विष्णु पद होता था। विष्णु पद माने भजन, वो भजन होते थे, उसके अपने नियम कानून थे। दरबार में जो संगीत पनपता है उसके नियम कानून अपनी तरह से बनते हैं। और राग, बड़ा समय था उस जमाने में लोगों के पास, तो राग, उसमें से एक और राग, उसमें से और राग, और न जाने कितनी तरह के राग बनाना पॉसिबल होता था। उन रागों की नसों को पहचानने के लिए भी बड़ी फुर्सत चाहिए थी। इसलिए रागों के इतने रूप हमारे सामने उस ज़माने में दिखाई देते हैं। नाम ही नाम है, गाना बजाना तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन रागों के नाम हैं, और वो पुरुष राग, स्त्री राग, पुत्र राग, इस रूप में बहुत सारा क्लासिफिकेशन मिलता है हमें। तो एक से संबंधित ही अनेक राग थे। ये सब दरबार में सामंतीय युग में पॉसिबल था। आज हमारे पास फुर्सत नहीं है कि एक राग के ढेरों रूपों को हम याद करें, और याद करके कर भी क्या लेंगे, उसका फायदा भी क्या। दरबार में तो फायदा था। राजा को हर वक्त ये महसूस होता था कि मेरा जो कलावंत है वो कितना योग्य है, कितनी चीज़ें कर लेता है, कितनी तरह की चीज़ें कर लेता है। राजाओं को संगीत की समझ तो ना के बराबर होती थी, पर फिर भी आनंद लेते थे। बहुत कम राजा थे जिनको संगीत की समझ थी। जैसे मानसिंह तोमर का नाम मैंने लिया, मोहम्मद शाह रंगीले बाद में 18वीं सदी में हुए, उनको भी बहुत समझ थी। उनका रंगीला नाम, कहते तो ये हैं कि वो रागों वागों को बहुत पसंद करते थे इसलिए रंगीला हुआ, मगर वो वास्तव में हर तरह से रंगीले थे। अब ऐसे रंगीले के ज़माने में जो संगीत पैदा होगा, जाहिर है उस संगीत में भी बहुत तरह के रंग होंगे। कहा ये जाता है, मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा, कहा ये जाता है कि ख्याल की जो बंदिशें हैं, उन ख्याल की बंदिशों में ध्रुपद का असर है। माने ध्रुपद का जो ढांचा था, उस ढांचे को फॉलो किया गया था। ढांचा क्या था? स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग, इन 4 खंडों में बटा रहता था एक राग का ध्रुपद। और जाहिर है कि उसमें शब्दों का बड़ा महत्व था। 4 खंड हों तो 4 खंडों के लिए आपको शब्दों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, पद बनाना पड़ेगा। तो उस युग के जो संगीतकार थे वो साहित्य में भी मर्मज्ञ होते थे। कम से कम इतने मर्मज्ञ तो होते ही थे कि दरबार में जैसे दूसरे कवि हैं, माना तो ये भी जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में घनानंद भी थे, और घनानंद की किंवदंती भी है कि मोहम्मद शाह रंगीले को ये पता लगा कि घनानंद भी गाते हैं, और उन्होंने आग्रह किया कि घनानंद, आज हम तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान के अलावा किसी को सुनाते वनाते नहीं थे, और जब उनसे कहा गया कि आप सुनाइए तो राजा की आज्ञा, वो बोले महाराज ये सब दरबारी गलत बोल रहे हैं, मुझे गाना वाना नहीं आता। कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तब दरबारियों ने कहा कि महाराज ये आपके कहने से नहीं गाएंगे, सुजान को बुलाइए, वो कहेंगी तो ये गाएंगे। अब किसी महाराज के लिए उनके दरबार की कोई स्त्री, कहते हैं वो गणिका थी, उसके कहने से ये सुनाएंगे और मेरे कहने से नहीं सुनाएंगे, ये तो बड़ी विचित्र बात है। पर इसको प्रमाणित करना था, जानना था कि ये सच्चाई है भी या नहीं। तो उन्होंने सुजान को बुला भेजा। सुजान आई और बोली, घनानंद जी ज़रा गाना तो सुनाइए। और घनानंद जी ने राजा की तरफ की पीठ, सुजान की तरफ किया मुंह, और कहते हैं ऐसा गाए कि सारा दरबार
संगीत में डूब गया। ये सब किंवदंतियां हैं और गप्पे हैं। उसके बाद राजा ने बोला कि घनानंद, तुमने बड़ी भारी बेइज्जती की है सिंहासन की, लेकिन तुम एक ऊंचे कलाकार हो और मैं संगीत का मारा हुआ हूं। ऐसे में मैं एक कलाकार को मार नहीं सकता, वरना तो सर कलम करवा देता। इसलिए तुम दफा हो जाओ, हमारे राज्य को छोड़ो और भाग जाओ। कहते हैं वो उसके बाद मथुरा चले गए और मथुरा जाने के बाद में फिर वहीं पर वो पद लिखने लगे। यानी जो घनानंद सुजान के पीछे मरते मिटते थे वो वहाँ भक्त हो गए और 1000 से ज़्यादा पद लिखे। घनानंद पदावली के नाम से वो मिलते हैं, वो भी रागों में है। तो वो रागों में है, लेकिन उन्होंने जो कवित्त सवैये दोहे लिखे थे वो कोई राग में नहीं है। तो भक्तों की जो परंपरा थी, जो वैष्णव मंदिरों में जो गाया बजाया जाता था, उनके लिए कुछ ना कुछ राग का नाम डाला जाता था और वो किसी ना किसी धुन में गाते थे। उस धुन को जिस स्वरावली से संबद्ध होती थी उस राग को मान लिया जाता था। तो ये उस युग की सच्चाई है जो 18वीं शताब्दी है हमारी। उस 18वीं सदी में जब ख्याल का निर्माण हुआ तो घनानंद ने भी ख्यालों का जिक्र किया है, अपने पदों पर ख्याल का जिक्र किया है, ठुमरी का भी जिक्र किया है। लेकिन सदारंग वास्तव में एक ऐतिहासिक पर्सनैलिटी थे जो कि मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में थे। उनका प्रमाण मिलता है। उन्होंने, कहते हैं, हजारों बंदिशें बनाई ख्याल की, लेकिन ये बात भी कही जाती है कि उन्होंने जो बंदिशें बनाई वो स्वयं तो ध्रुपद गाते थे, लेकिन ये जो कोठेवालियां हैं इनके लिए वो ख्याल बनाते थे। अब जरा मजा देखिए कि पंडित भातखंडे जब 19वीं सदी में अंत में लिखते हैं कि ठुमरी का गाना बजाना कोई ज्यादा सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता, कारण उसका ये माना गया कि वो कोठेवालियों से संबद्ध है। मतलब गाने वाला कौन है, इससे संगीत ऊंचा और नीचा होगा। ठुमरियां नीची हो गई, भातखंडे के जमाने में ख्याल ऊंचा हो गया। जबकि ध्रुपद से जब निकला था तो सदारंग ने ख्याल को ही कोठेवालियों के लिए बनाया था। इससे ये तय होता है कि हमारे समाज में स्त्री का कब उत्थान और पतन होता रहा है। मतलब स्त्री का उत्थान पतन ना कहें, स्त्री के बारे में पुरुष के नजरिए का उत्थान पतन कब कैसे होता रहा है। वही आम्रपाली थी, गणिका थी, उसका कितना सम्मान था, उसे अप्सरा कहा जाता था। उस युग की तमाम गणिकाओं को अप्सरा कहा जाता था। बाद में वो गणिकाएं कही जाने लगी और फिर तो वो सीधे सीधे वेश्याएं और कोठेवालियां हो गई। वही स्त्री है। जिस जमाने में उसका सम्मान था, उस जमाने में उसका गाना बजाना, ना नाचना परम आदरणीय था। और जैसे जैसे उनका स्थान समाज में गिरता गया, वो संगीत भी गिरता चला गया। और आज भी बहुत से पंडित हैं, सुलोचना जी अच्छी तरह जानती हैं, जिनसे आप कहिए कि पंडित जी आप बहुत अच्छा ठुमरी भी गाते हैं, क्योंकि घरेलू बैठक में हमने सुनी है और मंच पर आप आग्रह कर बैठे, तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं ठुमरी उमरी नहीं गाता, हाँ मैं आपको भजन सुनाता हूँ। भजन ऊंची चीज़ है, ठुमरी नीची चीज़ है। इसके पीछे बनारस की परंपरा भी है जी। तो इस बात को मैंने आपके सामने रखा है और इसके आधार पर अब आप जो 18वीं सदी का ख्याल है, उस 18वीं सदी के ख्याल पर विचार करें। और सुलोचना जी क्योंकि उस ज्ञान परंपरा से जुड़ी हैं, उस क्रिया परंपरा से भी जुड़ी हैं संगीत की, उनके क्या विचार हैं, हम चाहेंगे कि वो भी अपनी बात कहें।
सुलोचना बृहस्पति। नमस्कार। अभी मुकेश जी ने सारी बातें तो बता ही दी हैं। सदारंग के बारे में कल भी हम सुनते आए हैं, तो बहुत सारी बातें हो गई हैं। तो सदारंग जैसे बताया था, ध्रुपद के बाद धीरे धीरे लोगों का आकर्षण उससे कम होता गया और ख्याल की तरफ जाने लगे। तो सदारंग ने सीधी पटरी के ख्याल लिखे, जिसमें स्थायी अंतरा होता था और राग की शुद्धता होती थी, कि राग बहुत शुद्ध होता था, क्योंकि ध्रुपद गायक थे, वो बीनकार भी थे, इसलिए राग शुद्ध होता था। आज भी राग में तो बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन हो गया है, लेकिन ध्रुपद वाले फिर भी शुद्धता को रखते हैं, अलापचारी। तो उसी प्रकार से सीधी पटली में उनका सीधा अलाप चलता है उसके अंदर, और स्थायी यंत्रा संचारी अभोग की तरह से उनका आलाप पर बहुत जोर होता है। उसके बाद वो बंदिश गाते हैं। तो इसी प्रकार से सदारंग ने ऐसी बंदिशें लिखी। अब उसी परंपरा को कायम, क्योंकि इतना कहा जा चुका सदारंग के बारे में, उसके क्योंकि उसका वो जो थे, भाषा पर भी उनका उसी प्रकार से मतलब पूरा कमांड था, और संगीत में भी उसी पर। तो एक बहुत बड़े अच्छे वाग्यकार कहना चाहिए कि वाणी पर भी और जो दूसरा भाषा पर, दोनों पर भी, गाने पर भी और उनका भाषा पर भी बहुत ज़्यादा जो अधिकार था, क्योंकि वो महाकवि देव के भी शिष्य हुए हैं। और इस प्रकार से, क्योंकि दरबारों में ऐसा होता था, विद्या का आदान प्रदान हुआ करता था, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि स्कॉलर्स भी हैं, पोएट भी हैं, गाने वाले भी हैं। तो ये बहुत अच्छा एक समागम है कि एक दूसरे के कम से कम एक मंच में आकर सब बातचीत कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। इस प्रकार का हम सोच सकते हैं कि उस समय भी वातावरण हुआ होगा, लोग बैठते होंगे, बैठक होती होगी। और जहाँ तक सदारंग कहते हैं, वो ज़्यादा सूफियों के जो समाधि पर भी जाते, हज़रत निज़ामुद्दीन के समाधि पर भी जाते थे। ये सारी बातें हैं क्योंकि कई बार उनका सूफियों का मतलब हज़रत निज़ामुद्दीन का भी मतलब कि नाम लेते हैं उसमें, कई बंदिशों में। अब क्योंकि अब ये राग की बात हो रही थी, राग को तो हम एक समझ लेंगे, एक कलर को कहते हैं राग। जैसे कोई एक रंग है, कोई पीला रंग है, कोई सफ़ेद, तो उसमें कौन सा कलर है, तो ये हम राग की हम मतलब मोटे तौर पर ये परिभाषा कर सकते हैं कि एक प्रकार का कलर है जो कि एक रंग है। जैसे कि हम गा रहे हैं, अब बसंत गा रहे हैं तो उसका एक कलर होगा, बहार गा रहे हैं तो एक कलर होगा। इसी परंपरा को अब आगे हम आ सकते हैं, क्योंकि सदारंग ने भी बहुत सारी जब बंदिशें लिखी, अब कितनी प्रामाणिक है नहीं प्रामाणिक ये कह नहीं सकते हम उसको। कई बार होता है कि उसमें सदारंग का नाम डाल देते हैं, सदारंग या आधा रंग का नाम डाल देते हैं, और वो कई बार वो उस प्रकार से वो टकसाली बंदिश नहीं होती, वो प्रामाणिक बंदिश नहीं मानते। खैर, उसके लिए तो बहुत भाषाविद होना चाहिए, वाग्यकार होना चाहिए, उस बात को वो समझ सकते हैं। अब रहा कि ये उसके बाद क्या बात हुई, उसके बाद उसी परंपरा को कायम रखते हुए, क्योंकि रामपुर का, क्योंकि यह कहा जाता है कि जब दिल्ली उजाड़ हुई तब लखनऊ बसा, और लखनऊ जब उजड़ी तो उसके बाद रामपुर रियासतें, क्योंकि दिल्ली में उस प्रकार से राजनीतिक से बहुत से ऐसी परिस्थितियाँ थी, उसके वजह से लोग लखनऊ में गए, अवध में गए, और वहाँ पर बहादुर हुसैन खां साहब जैसे लोग, बीनकार लोग जो थे, वो वहाँ पर थे, और वो जाकर फिर उसके बाद रामपुर में जाकर बस गए। तो इस प्रकार के पर्सनालिटी जो पखावत जी हैं, और जो ध्रुपद गायक हैं या ख्याल गायक हैं, वीणा वादक हैं, और तबले वाले हैं, नर्तक हैं, और जो पंडित हैं, और जिस पर कवि भी हैं, तो शायर भी हैं, सबका एक समागम जो रामपुर दरबार में था। तो रामपुर दरबार में सदारंग के वंशज थे, अदारंग भी रामपुर दरबार में थे। वहाँ जो अलग अलग जो नवाब हुए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको पैट्रोनेज दिया, क्योंकि उनको राजस्व कहाँ मिलना चाहिए था। संगीत तो तभी हो सकता है जब उनको कोई राजस्व मिलेगा,
तब वो अपने संगीत कर सकते हैं, रियाज तब कर सकते हैं, किसी चीज़ को लिख भी सकते हैं। लेकिन जब राजनीतिक उथल पुथल होगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो, और फिर उनकी जीविका का भी एक सवाल उठता है, जो कि वो नवाब जो हैं, राजा है, उसको पूर्ण करते थे। इस प्रकार से बहादुर हुसैन खां साहब वहाँ पर जो वीणा वादक थे, इसी रेफरेंस में मैं कहना चाहूँगी कि मेरे गुरु भीपति आचार्य बृहस्पति उसी दरबार में थे और उनके परदादा जो थे पंडित दत्तराम जी और वीणा वादक जो बहादुर हुसैन खां साहब एक समवर्ती थे, क्योंकि उनको ज्योतिष शास्त्र पर भी उतना ही अधिकार था, वीणा वादन में भी उसी प्रकार से अधिकार था। तो ये एक प्रकार से ये बात है। उस दरबार में तो बहुत से अहमद जान थे रगवा भी वहीं पर थे, और कहा जाए और बहुत सारे ध्रुपद गायक भी थे, बीनकार भी थे, ख्यालिए सारे सब वहाँ पर थे, नर्तक भी थे, अक्षर महाराज भी वहाँ पर थे। इस प्रकार से बहुत लोग वहाँ पर थे। स्वर्गीय भातखंडे जी ने भी वहाँ नवाबों से ये विद्या को, छम्मन साहब वगैरह से ये विद्या ली, और जो उनका आज जो क्रमिक पुस्तक मालिका है, वो जब तक वो वहाँ बंदिशें उनको नहीं देते तो उनको प्राप्त नहीं हो सकती थी। ये एक बहुत बड़ा योगदान है उनका नवाबों का, कि जो वो इस प्रकार से करते थे। वो अलग बात है, जो और बातें होती थी वो तो होती थी, लेकिन ये उनका एक था कि बहुत संभाल कर उन्होंने इसको रखा था। और बहुत सारी जो बंदिशें आज भी हमें मिलती हैं भातखंडे की, उनका बहुत बड़ा योगदान है, वो बंदिशें वहाँ मिल जाती हैं। चाहे आप देखिए सदारंग की, अदारंग की, बहुत सारी बंदिशें वहाँ प्राप्त हो जाती हैं। और उसमें है कि कितने उसके अंदर गलतियाँ हो गई वो अलग बात है, उसको शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसी बंदिशें हैं कि उसका मतलब स्थायी अंतरे में कोई फर्क मतलब जो है कुछ अगर गलत हो गया है तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो लेकिन पुराने जो गायक, जिसको हम कहते हैं भाई पुरानी बंदिशें हैं, क्योंकि हरदम नया सोचने की हरदम प्रक्रिया रही है। लेकिन लोग क्या होता, संगीत के क्षेत्र में ये यानी आलोचना की बात नहीं है, लेकिन एक सोचने की बात है कि क्यों नहीं उसको, या तो गलत है उसको ठीक कर लिया जाए, क्यों नहीं नवीन चिंतन हो। इसीलिए आचार्य बृहस्पति ने अनंग रंग की मुद्रा से बहुत सारी बंदिशें लिखी, क्योंकि अगर पुराने को ठीक करते हैं तो गायक कहेंगे नहीं नहीं ये तो गलत है, ये हमने तो ऐसे ही सीखा है, हम तो ऐसे ही गाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जो अच्छी है वो तो अच्छी है, उसकी मतलब वो नहीं कह सकते कि वो नहीं है, क्योंकि वो लोग भी अच्छा गाते थे। लेकिन कई बार होता था कि जब हम सदारंग की से तुलना करते हैं, सदारंग की चर्चा करते हैं, तो उतने भाषाविद वो थे, वो गाने वाले भी थे, बीनकार सब कुछ थे वहाँ पर। लेकिन अब उसको कहा है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, भाषा को उनको ज्ञान नहीं है, कहाँ पर कौन सी गलती हो गई है। अब वो कहते हैं कि अर्थ से कोई मतलब नहीं है। और जब यहाँ हम बात कर रहे हैं लिटरेचर की और संगीत की भी बात कर रहे हैं और वर्ड्स की बात करें, तो वर्ड्स तो होना ही चाहिए। संगीत में अगर हम गाने को कहें तो भाव की बात बहुत होती है कि भाव भी होना चाहिए उसके अंदर, और उसके अंदर अर्थ भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो भाव का जहाँ तक रस का है, तो वो तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बजाएंगे तो उसमें भी हो सकता है, भाव तो हो सकता है उसके अंदर। लेकिन एक जो बात कहने का एक तरीका है, एक उसको कहा संगीत में कहा जाता था कहन, उसकी कहन बहुत अच्छी है। भाषा भी होनी चाहिए, कहन होनी चाहिए, फिर उसका लगाव कैसा है, ये ध्रुपद से ही हम लोगों ने सीखा कि लगाव कैसे है वहाँ पर। एक बात होती काकू की, काकू माने स्वरों का उतार चढ़ाव। एक तो पढ़ना होता है, पढ़ रहे हैं हम, एक होता है पाठ करना होता है, एक होता है गाना होता है। तो पाठ करना, पाठ में जैसे तुम्हें माता च पिता तुम्हें वतम्बी, अब इस प्रकार से ये कहेंगे पाठ हो रहा है। गाने में एक स्वर का उतार चढ़ाव होता है, उसको हम गाना कहते हैं। अब रागनी की बात होती, राग को क्लासिकल म्यूजिक जो आज कहा जाता है उसको कहा जाता था पक्का गाना। पक्का गाना वो होता है जिसका कि रंग कभी मतलब कि छूटता नहीं, उसको पक्का गाना कहते हैं। अब पक्का गाना है ये राग रागनी, क्योंकि आजकल कितने भी मॉडर्न म्यूजिक हो, सब कुछ हो, लेकिन वो राग रहेगा, राग जरूर रहेगा। कहीं कहीं राग भी हो रहता है। पुराने ज़माने में जो फिल्म भी होती थी उसमें काफ़ी राग रागनी में वो अपनी रचनाएं करते थे।
आजकल थोड़ी मिलावट हो गई है, लेकिन राग तो राग है, वो भूलता नहीं है वहाँ पर, वो इसीलिए उसको पक्का गाना कहते थे। कहन की बात हो गई, पक्के गाने की बात हो गई, तो ये सारी बातों का उसमें ध्यान रखा जाता था। अब वो बंदिश की बात में, जैसे क्योंकि आजकल बसंत का मौसम है, बाहर का मौसम है, तो एक आध मैं सोचती हूँ रचना सुना दूँ। बहुत जोर है। ठीक है ना? एक रचना है, वाग्यकार आचार्य बृहस्पति की है। कूकू कोरिया बोली रे ना रे ना कोयलिया बोली रे कुकू कोयलिया बोली रे अमुआ की डार फूली आली भंवरा डोले गुंजार करत कूकू कोयलिया बोली रे। मैं कल से शब्द साफ हूँ। सरसों फूली बरस कंचन, सरसों फूली बरस कंचन, कचनार कलियां चटकी बगियन सकी अनंग रंग सो चली मिलिए सखिया नंग रंग सो चली मिलिए कूकू कोयलिया बोली रे। अनंग रंग की मुद्रा से आचार्य बृहस्पति ने मनीषा लिखी, जैसे सदा रंग, उस प्रकार से अनंग रंग, उसी परंपरा को लेते हुए उन्होंने ये बंदिशें लिखी, जिसमें भी भाव भी होना चाहिए, शब्द भी होना चाहिए। लोग कहते हैं शब्द की क्या जरूरत है, अर्थ की क्या जरूरत है। मैं नहीं सोचती, क्योंकि अर्थ होना चाहिए, शब्द होना चाहिए, तभी तो भाव आएगा। अगर हम किसी चीज को समझेंगे नहीं तो भाव कैसे आएगा? बिना समझे तो भाव नहीं हो सकता। शब्द भाषा जरूरी है। देखिए, गूंगा भी अपनी बात को कह सकता है, लेकिन भाषा जब होता है तो उसके अंदर चार चांद लग जाते हैं, नहीं तो वो प्रकट कर सकता है अपने भावनाओं को। तो इसी प्रकार से संगीत में भी अलग अलग भाव हैं, अलग अलग रस हैं। वहाँ पर वियोग भी है, संयोग भी है, संयोग वियोग सब है। अब एक मतलब जहाँ तक एक बसंत की बात आ जाती है, तो हम लोग जो ये बसंत आजकल गाते हैं वो वियोग का बसंत है ना। देखिए, अब जैसे संयोग काकू की बात, मेरो बसंत काहे को माई जाके पिया कहूँ भरमाए मोहे
सब दिन एक समान मेरो बसंत। तो मेरो बसंत काहे को माई, जाके पिया कहूँ भरमाए, मोहे सबे दिन एक समान। तो ये ब्रज भाषा की जैसी शैली चली आई है, आचार्य ने उसे ब्रज भाषा में लिखा। जैसे कि साधारण ब्रज भाषा में लिखी जाती है, जो बहुत मधुर भाषा है। तो ये संयोग और वियोग की बात हो गई। अब रह गई नई, बहुत सारा जो सूफियों वाली भी बात आ जाती है और नई की बात आ जाती, नए राग की बात आ जाती है। तो एक राग है एमनी बसंत। एमनी बसंत का जिक्र जो है, नगमातुल हिंद एक किताब है जिसके लेखक हैं जानी साहब अशफाक अली खां साहब, जो कि हैदर अली खां के पुत्र थे, भातखंडे के गुरु छम्मन साहब के ये अनुज थे। तो ये इसका जिक्र है इस किताब में, एमनी बसंत। हजरत अमीर खुसरो को बनाया हुआ राग है, लेकिन आप कहेंगे हजरत अमीर खुसरो को बनाया राग है, लेकिन आविष्कारक आचार्य बृहस्पति हुए। उसके जो बंदिशें लिखी आचार्य बृहस्पति ने, उसकी बंदिशें एमनी बसंत की लिखी हुई हैं, जिसमें कि हजरत निजामुद्दीन के दरगाह का भी उसमें वर्णन, सूफियों का भी उसमें कुछ वर्णन है। भनक परी मोरे कानन में, भनक परी मोरे कानन में, हजरत के दरबार आज छायो सखी सरस बसंत। भनक पारी मोरे कानन में, अनंग रंग रंग ऐसो न्यारो, कली कली उमगी मोरे मन कियाली, उपवन मधुर सुगंध भरी, भनक पारी मोरे कानन में, भनक पारी। सुलोचना जी, ये बहुत वक्त चाहिए ऐसी गहरी बातों को समझने के लिए। समय बहुत कम है। आगे बढ़ाते हैं बात को। मंजरी जी, इस ख्याल और नेचर और दिल्ली का जो संबंध है, इसको थोड़ा डिटेल में बताएं। और मैं बहुत आनंद आया, और अभी तक हमने जो चर्चा सुनी ध्रुपद ख्याल की, 18वीं सदी के ख्याल की, उसके बाद ठुमरी की और ठुमरी की अधोगति की, सारी बातें सुनी। पर आनंद तब आया जब सुलोचना जी ने कुछ मौसम की, कुछ ऋतु की, कुछ बसंत की बातें करी। हम इतने खूबसूरत परिवेश में बैठे हुए हैं और विषय है प्रकृति और संगीत। मुझे लगता है प्रकृति की बातें थोड़ी कम हुई हैं, और हमारे संगीत में प्रकृति को लेकर के एक गहरा जुड़ाव रहा है। शायद प्रकृति के उल्लास को देख करके ही पहली बार आदमी गुनगुनाया होगा। और ऋतु से जुड़े हुए राग तो आपने देखे, बसंत और मल्हार के ढेरों प्रकार हैं हम लोगों के यहाँ जो वर्षा ऋतु के हैं। इसके अलावा सूर्योदय, सूर्यास्त, गोधूली वेला, फूल, नदियाँ, निर्झर, कोई ऐसा प्रकृति से जुड़ा हुआ विषय नहीं जिसकी बंदिशें न हों। लेकिन जब हम बात संगीत की करते हैं तो केवल
वोकल म्यूज़िक या कंठ संगीत की बात नहीं होती है, राग संगीत की बात होती है। भारतीय संगीत मुख्य रूप से राग संगीत है, चाहे वो दक्षिण में हो चाहे वो उत्तर में हो। राग की परंपरा हमारी अपनी भारतीय परंपरा है और ये हिंदुस्तानी संगीत की ख़ास बात है कि यहाँ पे हर प्रहर से जुड़े हुए राग रहे हैं। भोर के राग, उसके बाद धीरे धीरे सूरज की लालिमा बढ़ती है, सूर्योदय होता है, उसके बाद सूर्य जैसे जैसे बढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, इस समय दोपहर के रागों का वक्त है, उसके बाद दोपहरी के राग होते हैं और शाम के और रात के। चाहे वो गाना हो चाहे बजाना हो, आज एक अनकहा नियम है हिंदुस्तानी संगीत में कि गाना बजाना वक्त के मुताबिक, मौसम के मुताबिक, ऋतु से मेल खाता हुआ होता है। मुझे याद आती है इस पिकनिक की एक वर्कशॉप हो रही थी, उस्ताद फ़हीमुद्दीन डागर साहब सिखा रहे थे। भैरव सबसे बेसिक राग है। भैरव में वो ध्रुपद सिखाना चाहते थे, लेकिन वो पहले आलाप सिखा रहे थे और ऋषभ से जैसे सा पे आते हैं वो बात बन नहीं पा रही थी। उन्होंने एक इतनी खूबसूरत मिसाल दी जो कि तुरंत बच्चों को समझ में आई और बात बन गई। उन्होंने कहा, जिस तरह कल्पना करो कि सूर्य उदय हो रहा है और उसको अर्घ दिया जा रहा है, तो अर्घ दिए जाते हुए जल जिस तरह से ऊपर से नीचे को आता है, उस तरह से ऋषभ से षड्ज पे आओ। तो प्रकृति से जोड़ करके किस तरह से संगीत को समझा भी जा सकता है, वो भी एक ख़ास बात है। हमारे यहाँ अष्टयाम सेवा मंदिरों में रही है। भगवान को पुष्टि मार्गी संगीत में आज भी प्रचलित है कि भगवान को जगाने के लिए प्रातःकाल के राग होते हैं, फिर उनको कलेवा कराने के लिए तोड़ी है, और उसके बाद भोजन के लिए दिन के सारंग के प्रकार होंगे, तो उनको शयन कराने के लिए मुल्तानी है, भीम पलासी है, और इस तरह से सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। पर सवाल ये है कि क्या ये मनगढ़ंत बातें हैं? अगर आप ये प्रश्न उठाएं कि ऐसा क्यों है, ये अनकहा नियम क्यों है, किसी का लिखा लिखाया नियम तो है नहीं और दक्षिण में माना भी नहीं जाता, संसार का कोई संगीत नहीं मानता, तो हम क्यों मानते हैं? आजकल वैसे भी संगीत बंद सभागारों में होता है, तो वहाँ क्या सूर्योदय और क्या सूर्यास्त, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आपका ध्यान जेट लैग की तरफ से आकर्षित करना चाहती हूँ। अगर आप अमेरिका से आते हैं तो जब तक उसके सुबह शाम आपके सुबह शाम बन नहीं जाते, तब तक आपकी जो सुई होती है, अंदर चलने वाली घड़ी की सुई, वो सही उस पर नहीं आती है। तो हमारे यहाँ जो विद्वान हुए हैं उन्होंने इस पर विचार किया है, और इस पर सबसे वैज्ञानिक विचार 1916 में भातखंडे जी ने, जो सबसे पहली म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हुई थी बड़ौदा में, उसमें इस बात को रखा था। तो उन्होंने इसका ये कहा कि इसको इंसान के साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो हालात होती हैं, अंदरूनी हालात, उससे जोड़ करके उन्होंने रखा, और उसके लिए ध्यान आकर्षित किया उन्होंने कि किस तरह से सुरों के बदलाव से रागों में मौसम का विस्तार होता चलता है। जैसे बहुत सुबह गाए जाने वाले रागों में कोमल ऋषभ और कोमल धैवत और तीव्र मध्यम होता है। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता है, उसकी रश्मियाँ आगे बढ़ती हैं, वो कोमल से शुद्ध की तरफ आता है। जो बिलावल है वो शुद्ध ऋषभ, शुद्ध धैवत और शुद्ध मध्यम का राग है। और फिर इसके बाद जैसे जैसे सूर्य उतरना शुरू होता है, सूर्यास्त की तरफ रात आनी शुरू होती है, तो फिर शुद्ध मध्यम से वो बात तीव्र मध्यम की ओर जाती है, और फिर कोमल ऋषभ और सूर्यास्त के समय। और इसीलिए हमारे यहाँ संधि प्रकाश राग कहे गए हैं। जो गोधूली वेला है, जो सुबह भोर की वेला है, वो प्रकाश और अंधेरे के मिलन की वेला है। तो उस वेला के लिए विशेष सुरों के राग संधि प्रकाश राग कहलाए गए हैं, और उसमें बहुत बंदिशें हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली बसंत और खाली बारिश की बातें होती हैं। हमारे यहाँ तो दिन के हर प्रहर के साथ जुड़े हुए राग हैं, और प्रकृति से बहुत गहरा जुड़ाव रहा है हमारे यहाँ। तो इसको वैज्ञानिक रूप से भी, साइकोलॉजिकल रूप से भी, फिजियोलॉजिकल रूप से भी हर तरह से प्रूव करने की भी कोशिश की गई है। और आज हमने बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए हैं
बात जब इस पे आ जाती है कि हम क्यों नहीं सुबह का राग शाम को गा सकते हैं, आकाशवाणी में जाते हैं तो तीनों वक्त के साथ एक साथ ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो बंदा वहाँ के स्टूडियो में गा रहा है वो सुबह वाला राग भी रिकॉर्ड कराता है, दोपहर वाला भी, शाम वाला भी। तो हम उस अपने मन में क्यों ये पूर्वाग्रह पाले हुए हैं? लेकिन ये पूर्वाग्रह है और ये कन्वेंशन बन गया है, हम लोगों की कंडीशनिंग हो गई है। शायद नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक के साथ ही, हिंदुस्तानी संगीत के साथ ही ऐसा है, लेकिन ये एक अनकहा नियम बन गया है। और होता भी है कि यूँ तो बड़ी अमूर्त कला है, सुरों की कला, राग की कला तो बिल्कुल अमूर्त कला है, लेकिन इसको भौतिक धरातल से जोड़ने का काम ये स्वर करते हैं। जब आप भैरव की कल्पना करते हैं, उसके स्वरों का लगाव जब आप देखते हैं, चाहे वो गायन में हो चाहे वादन में हो, आपके मन में सूर्योदय की, सुबह होने की एक कल्पना अपने आप जागने लगती है। तो मैं एक बार फिर इस विषय को प्रकृति की तरफ लाना चाह रही थी, इसलिए मैं घड़ी देख लूँ, तकरीबन समय हो गया है, अब विक्रम जी के समेटने वाला वक्त है। तो और इन्होंने बड़ी सुंदर बंदिशें गाई हैं, और डार डार पातन पर कोयलिया बोले। अभी कोयल की जो कूक आपने नोटिस किया, जैसे सचमुच में कोयल कूक बोलती है, कूकती है, उस तरह का प्रयोग था। तो जो हमारे यहाँ वाग्गेयकार हुए हैं, वाक और गेय दोनों पर उनका समान अधिकार रहा है, और वो सोच करके उसी तरह से निर्मित करते थे कि सुरों का प्रावधान सहित हो, शब्दों का प्रावधान सहित हो, काकु वैचित्र्य उसके अंदर ऐसा हो कि बात अमूर्त विषय होते हुए भी आँखों के सामने मूर्त हो जाए। वो ये संगीत ही कर सकता है। मुझे लगता है राग संगीत जो उन्होंने पक्का गाना कहा गया है, ये इसीलिए वेरीफाई किया गया है। और चाहे वो लोक संगीत हो, चाहे वो फिल्म संगीत हो, बिना राग संगीत की आधारशिला के वो संभव नहीं है। तो राग संगीत जो है वो प्रकृति का, उसका जुड़ाव और प्रकृति को लेकर के चलने की बात, ये बहुत अच्छा विषय सोचा गया है, और मुझे लगता है इस पर और गहराई से विचार की ज़रूरत है। इस विषय पर भी रिसर्च की जानी चाहिए कि ये हमारी कंडीशनिंग क्यों है ऐसी। क्या ये संभव नहीं है कि सुबह के राग शाम को गाए जा सकें? क्या यह संभव नहीं है कि जो झूला है या कजरी है, ये वसंत में ही गाई, वर्षा ऋतु में ही गाई जाए, या उसके राग जो ऋतु विशेष के राग हैं उन ऋतुओं में ही गाए जाएं? अन्यथा भी गाए जा सकते हैं, लेकिन फिर उनका समय विधान है कि वो दिन के किस प्रहर में गाए जाएं। असर नहीं होगा। जी जी, असर नहीं होगा उसका। क्या अच्छी बात कही है। देखिए, ये अपने अनुभव जन्य सत्य के, हमारे यहाँ कहा गया है कि एनी बिलीव इज नॉट ट्रू एज लॉन्ग इट्स बिकम्स योर ओन एक्सपीरियंस। और ये अनुभव जन्य जिसे कहते हैं ना, प्रमाण है, आप्त प्रमाणम। तो ये आप्त प्रमाण की तरह से ये कह रही हैं कि आप गाने को गा लीजिए, बजाने को कर लीजिए, पर प्रकृति से विच्छिन्न हो करके वो अपना असर खो देगा। मुझे बस यही कहना था। आपने मुझे इतने प्यार से झेला, इसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि रागों का समय से बहुत गहरा संबंध है, वैसे ही हम लोग का सेमिनार का भी समय से बहुत गहरा संबंध है। हमें मैसेज मिल रहा है, घड़ी देख करके चल रही थी, देखिए जी, टाइम अप हो गया है। लेकिन अगर कुछ किसी को कुछ सवाल करना है तो एक दो क्वेश्चंस हम लोग ले सकते हैं अभी। नहीं, हमें लगता है कि सबको ही को आप लोगों ने सबको सोच में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।